Good morning, students. Myself B.H. Chauhan, from Indo-Bharat International Public School. Now, chapter 8 हम complete कर चुके हैं for class 9. Now, new chapter will be started, areas of parallelograms and triangles. Chapter number 9. Now, today we discuss about the exercise 9.1 and 9.2. Exercise number 9.1 you can also solve the orally. Actually, in this exercise, just find out such a figures which figures are lie on the same base and between the same lines and same parallel lines. Okay, so find out just which figure lie on the same base, जिसका base same हो और क्या वो दोनों same parallel के बीच में है या नहीं, ऐसे figures का आपको बताना है. तो this exercise is your homework and solve yourself. It's a very simple exercise. Doubts हो तो आप पूछ सकते हैं. Now we discuss about the exercise number 9.2. Now for this exercise we discuss first theorem number 1 is a very important theorem. This theorem is two parallelograms. Statement already your NCERT book आप देख सकते हैं. In this theorem, given that two parallelograms lie on the same base and between same parallels, so their areas are also equal. That means हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अगर दो parallelograms, suppose two parallelograms, A, B and C and D, and second parallelogram A, B, E, F. Now their areas are equal. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. So that definitely base is already same and height, perpendicular height between two parallel lines are always equal. So automatically their areas are equal. But you can also prove, you know, A, B, C, F, it is the common part. This part is the common. Now common जो नहीं है, triangle 1 and 2 is the not common. So first you prove triangle 1 and 2 is the congruent. लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं ओरली समझा रहा हूं. AD इक्वल टू BC opposite sides of parallelogram and also AF and BE is also equal opposite sides of parallelogram. Now also angle D and angle C are equal, corresponding angle between two parallel, and angle F and angle E are equal, corresponding angles between two parallel lines. Two angles, two sides are equal, and two angles are equal, that means angle side, so triangles are congruent. Triangles are congruent, so if two triangles are congruent, so must be their areas are also equal. ये अब पढ़ चुके हैं. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली इक्वल, तो उनके एरिया भी ऑटोमेटिकली इक्वल्स होंगे. जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो ये फर्स्ट पार्ट तो कॉमन ही हो गया, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF. इस प्रॉपर्टी को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे. थ्योरम नंबर 2, इट इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम. थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम बेस्ड ऑन ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम. सपोज वन पैरेललोग्राम ABCD is given and one triangle AEB. क्या है इसमें कॉमन? This triangle and parallelogram lie on same base and between same parallel. Area of triangle is half into base into height. Area of parallelogram is base into height. So automatically area of this triangle is the half of area of parallelogram ABCD. आप चाहे तो यहाँ पर भी देखें तो ये पार्ट कॉमन है, तो ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इजीली आप प्रूव कर सकते हैं. सो वी कैन राइट ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये दो रिजल्ट जो हैं, फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकेंड रिजल्ट, इन दो रिजल्ट्स को आप हमें अच्छे से आप याद कर लो, क्योंकि यही रिजल्ट्स, इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पर हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 9.2 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं.
अगर ये थ्योरम्स अगर आपको याद है, थ्योरम्स को आप प्रूव भी कर सकते हैं। अगर प्रूव नहीं करते हैं, अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं थ्योरम्स को भी डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज के 9.2 की। तो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें 9.2, तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 9.2, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन in this figure ABCD is the parallelogram, means parallelogram is already given, figure is already given. First we do ABCD. नेमिंग जो है आपको गिवन है, A is B is C and D. This parallelogram and two perpendicular. A is the perpendicular on DC and second perpendicular is CF perpendicular on AD. CF means CF is perpendicular on AD. And now if AB equal to 16, AB is equal to 16 centimeter. Now second AE equal to 8 centimeter, AE is equal to 8 centimeter, and finally and CF is equal to 10 centimeter. Now फाइंड AD, आपको फाइंड आउट क्या करना है, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर कि इजीली कैलकुलेट द यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल यूज द दिस ट्रायंगल फर्स्ट, AB is given, now where AB is this one, and now AE, ये आपको हाइट गिवन है यहाँ पर, and CF where is CF, this one is the 10 centimeter, and AD where is AD, now AD is this one, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हम यहाँ पर पैरेललोग्राम के बेसिस पर हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम को एक बार अवॉइड कर रहा हूँ। और नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, फर्स्ट वी राइट द ट्राइंगल ए, यहाँ मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ AED, सेम बेस और बिटवीन सेम, तो सेम बेस, यस, AED is equal to half of area of parallelogram. नहीं, ये पैरेललोग्राम के बेसिस पे नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर ही यूज करना होगा। AB आपके पास गिवन है 16 और AE जो है यहाँ पे आपको गिवन है 8, तो डेफिनेटली हम AED जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। AED जो है एरिया, लेकिन यहाँ हम एरिया नहीं, हम फाइंड करने जा रहे हैं साइड, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसका एरिया लिखते हैं, एरिया की बात करते हैं अपन, मैं यहाँ एरिया लिख रहा हूँ, नो कंफ्यूजन। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। तो नाउ हाफ ऑफ ABCD अगर अपन रहने देते हैं, बट AED, अब AED मीन्स हाफ इनटू बेस इनटू, व्हाट इज बेस, AED का जो बेस है वो AD है, एंड इनटू हाइट, हाइट जो है इसका, हाइट इज AD अगर लिया तो इसकी हाइट CF, एंड हाफ इनटू ये बेस। This triangle is area of parallelogram is area of triangle is the half of ABCD, बिल्कुल सही लिखा वैसे, और इसका एरिया ये हो गया, और हाफ इनटू ABCD, वापस बेस ABCD का बेस हो गया आपका AB, एंड इनटू ABCD, और इसके बीच की हाइट होगी AE। अब जो पार्ट गिवन है, हाफ टू हाफ कैंसर, AD, व्हाट इज AD आपको गिवन है, AD आपको फाइंड आउट करना है, एंड CF, व्हाट इज CF, नाउ CF आपको गिवन है, CF इज इक्वल टू 10,
and is equal to AB. Again AB is 16 and AE, where is AE? AE आपको given है 8. Now finally AD is equal to 16 into 8 divided by 10. इसको आप solve कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। यूज द थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ lie between same parallels and same height. So area of triangle AAD lie ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, इन दोनों ट्राइंगल का बेस जो है, इनका पैरेललोग्राम का बेस है AB और ट्राइंगल जो है अगर अपन लेते हैं तो ये भी ट्राइंगल्स का जो बेस हो जाता है AD, और AD बेस ले रहा हूं और ये पैरेललोग्राम ले रहा हूं। इसी तरह से मैं जब दूसरा ये ले रहा हूं, दिस ट्राइंगल लाई, ये DC या बेस कॉमन हो गया और हाइट हो गई आपकी, यहाँ पे हाइट होगी AA। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 8, 4 एंड 5 अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल करके आप AD की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन E, F, G, H are the respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD. ABCD. First ABCD. Now figure is not given. So according to first we drew A, B, then C and D, and E, F, and then G, H are the midpoints. ये आपको given है, आपको prove करना है। Now so that ABCD midpoints of parallelogram ABCD, so that EFGH area of EFGH is equal to, आपको ये given होगा area midpoint, then so that area equal to half of पैरेललोग्राम ABCD। ये आपको प्रूव करना है। इट इज प्रूव, जहां मैंने एरो लगाया दैट मींस टू प्रूव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं, वन कंस्ट्रक्शन, वी जॉइन द H to F where H and F are the midpoints of two parallel lines। अगर टू पैरेलल लाइंस के मिडपॉइंट्स को लेता हूं, उनको ज्वाइन करता हूं, तो सो this line is the parallel to AB and this line is the parallel to DC। So you can write, first you write area of triangle GHF is equal to half of parallelogram DCFH। ये नंबर इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से चलते हैं। नाउ अगेन दिस इज आल्सो, इट इज पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर area of triangle, which triangle this time? EHF is equal to half of area of parallelogram ABFH। इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय एडिंग, दोनों को ऐड कर लीजिए। नाउ बाय एडिंग 1 and 2, दोनों को जब ऐड करते हैं तो फर्स्ट में वी ऐड ट्राइंगल्स। ट्राइंगल मैं ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट, ट्राइंगल AGH प्लस ट्राइंगल AEFH इज इक्वल टू हाफ ऑफ DCFH प्लस हाफ ऑफ ABFH। आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को जब ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH एंड इज इक्वल टू, ये हाफ में कॉमन ले लेता हूं, और इन दोनों कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और यही हमें प्रूव करना था। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया।
So now question number second is complete and question number third. See the question number third. Third is given PQ are any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. यहाँ पर भी वापस से पैराग्राम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज ही पैराग्राम और ट्राइंगल के बेसिस पे है. ABCD is the parallelogram. So first we draw ABCD is the parallelogram. Use the property of in parallelogram this one. Now given P and Q are any 2 points lying on the side DC. DC is P and second point है Q. Q like कर रहा है AD and Q this one and now पैरेललोग्राम तो आपको शो करना है APB is equal to BQC. अब देखो यहाँ हम जब भी मैं लिख रहा हूं दैट मीन्स ये है एरिया और ये भी है एरिया और 3 पॉइंट्स है दैट मीन्स ट्राइंगल. तो मैं ट्राइंगल का साइन नहीं लगा रहा हूँ, एरिया का साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो ये बार बार मैं नहीं लिख रहा. इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करना है. APB को आप बनाए पहले ABP, पहले मैं इसको ज्वाइन करूंगा और फिर मैं लिखूंगा BQC, तो यहाँ हो गया BQC, तो ये आपका आ गया सेकंड ट्राइंगल. वेरी सिंपल. आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB is equal to half of area of parallelogram ABCD. It is the theorem number second. Area of triangle is equal to half of area of parallelogram ABCD which where lie on the same base and between the same parallel. तो देखो यहाँ base AB हो गया और parallels दोनों sides हो गई. Second, first equation. Now second you can write area of triangle. Which triangle? This time triangle A. Now QBC is equal to half of again ABCD. इस बार बेस ये है और हाइट ये है. बाई 1 and 2. बाई 1 and 2. क्या देखा आपने? ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे. तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB is equal to area of triangle BQC. ये प्रूफ हो गया आपका रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट किया किसके बेसिस पे? सेम यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम. थ्योरम नंबर सेकंड. इफ triangle and parallelogram both lie on the same base and between the same parallels. Triangle उसी पैरेललोग्राम के एक बेस पे सेम होगा और दोनों पैरेलल के बीच में उसका पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट. तो हम बात करते हैं इसी ये सेकंड थ्योरम जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई. और दो पैरेललोग्राम इक्वल होंगे जब वो दोनों सेम बेस पर लाई करेंगे और सेम पैरेलल के बीच में होंगे. क्वेश्चन नंबर अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे 3 रिजल्ट्स हैं इसमें. तो 3 रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ कि चाहे तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं, सेम वही है. P इज द इंटीरियर पॉइंट ऑन द पैरेललोग्राम ABCD. इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा A B C D and P is the interior point. Suppose any point take the interior. और इसमें आपको गिवन है APB. Now first is AP. This is APB. और second आपको गिवन है now APB and now PCD. When PCD आपको प्रूफ यहाँ करना है इन दोनों का सम जो है वो हाफ ऑफ ABCD होगा. यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो. L इज पैरेलल टू AB. जब AB के पैरेलल है तो डेफिनेटली वो CD के भी पैरेलल होगी. क्या करना है? इस ट्राइंगल को करना है इस पैरेललोग्राम के हाफ और इस ट्राइंगल को करना है पैरेललोग्राम इसके हाफ. दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनल ये पैरेललोग्राम भी आ जाएगा और दोनों ट्राइंगल का सम भी आ जाएगा. तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया. सेकंड रिजल्ट के अंदर भी आप वापस से इसको इसके बेसिस पे चलेंगे, यहाँ से ये पैरेलल करेंगे तो इस बार ये ट्राइंगल जो है
इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा, और ये जो ट्राइंगल है इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा। वापस ऐड करोगे तो वापस वो ABCD होगा, और फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं सम ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू ट्राइंगल्स। अगेन नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। 6 एक सिंपल क्वेश्चन फार्मर के बेसिस पे है, वो आप अपने आप डिस्कस करना, डाउट होगा मुझसे पूछिएगा। मैं क्लास को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ विथ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 PQRS, फर्स्ट वी ड्रॉ PQRS is a parallelogram and ABRS, नाउ ABRS PQRS है, यहाँ PQ गिवन है, तो मैं क्वेश्चन गिवन है PQRS, और नेक्स्ट है ABRS where is ABRS? AB is RS, means A and it is B and it is RS. So यहाँ मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। बोथ आर पैरेललोग्राम एंड X on the point side on BR पे एक पॉइंट है X, so that PQRS आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ PQRS is equal to area of ABRS लिख सकते हैं डायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा। PQRS and ABRS both lie on the same base SR, पहले SR ये लिखना, lie on the same base SR and between the same parallel line, so their areas are also equal using the theorem number 1। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS is equal to half of area of PQRS। एक बात बताइए, ट्राइंगल AXS मतलब AX एंड देन S, ये ट्राइंगल बन गया। हम क्या लिख सकते हैं इसमें? फर्स्ट वी राइट एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अब ये AXS किसके बीच में है? AS कॉमन हो गया और ये बन रहा है ABRS, सो एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS के इक्वल यूजिंग थ्योरम नंबर 2। फर्स्ट, बट ABRS and PQRS both are equal from 1, तो यहां हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं PQRS because these are already equal by using the equation number 1। सेकेंड रिजल्ट की बेसिस पर हम फर्स्ट रिजल्ट की बेसिस पर हमने सेकेंड रिजल्ट को भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है, एक बार आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया, सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो रिजल्ट के बेसिस पर आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट, टू पैरेललोग्राम लाइंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देयर एरियाज आर इक्वल, दोनों के एरिया इक्वल होंगे। और सेकंड रिजल्ट आपको यूज करना है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। ट्राइंगल का मतलब हो गया one triangle and one parallelogram lie on the same base and between same parallel, then the areas are area of triangle is equal to half of area of parallelogram। ये दो रिजल्ट इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यूज करना है, उसी के बेसिस पे ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व होती हैं। आज मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 9.2, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके नाउ, ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड नाउ गुड डे।